So we welcome you for Vikalp Academy seminar, and specifically, I request you everyone to be pay attention on this discussion journey. I will be sharing some insights about why you should read newspaper, and parallelly how it will be effective at present in terms of the present situation we are considering. The one basic rule we can come up with is, if you have any serious query, you can immediately unmute and answer, immediately unmute and ask, or else you can put forward your queries in chat box. Parallelly, in the last part of my discussion, I will be discussing some question answers from you. You can ask me at that point of time, or probably your questions I can take it at the later stage. But make sure that you are clear with the idea what I am trying to say. This particular session is very, very important, because if you are reading newspaper properly, trust me guys, it is not only important for an entrance exam, it will definitely going to give you a age in entrance exam, but on a practical life or a real life situation, you need to be very, very sure about reading news and the understanding of the particular news, because we are living in a world where so much distraction is available. इतना distraction है कि like everyone is trying to influence you. तो वो influence को रोकने के लिए your reading ability, your reading understandings are very very key. तो ये बहुत हद तक help होगा. बट ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सेशन का पर्पस ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ चीजें थ्रो की एंड यू विल बी एबल टू लाइक यू आपने उसको सुना और आप उसको अप्लाई करने लगेंगे. This session is purely dependent on your ability to execute things what I am trying to convey here. Okay, execution is the key. Undoubtedly आपका कोच कितना भी अच्छा हो, ठीक है, आप वर्ल्ड क्लास कोच को हायर कर लीजिए, बट until unless आप अपने आप में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, you will not follow it. डिफिकल्ट होगा आपके लिए, डिफिकल्ट होगा उसको एग्जीक्यूट कर पाना. ठीक है. Before I'll start, I'm proud to announce the last year results that we have on in CLAT 2020. We have around 10 students got in NLU. We have students in Symbiosis. We got students in Narsee Monjay. We got students in इसमें GLC and ILS के students नहीं है. So this is some proud achievement that Vikalp Academy is having. Last year we got around 10 candidates. One is in Mumbai and around 9 is in NLU Nagpur. So looking forward for some more positive results, hoping that this year this crisis go soon, and we will be able to like achieve the better feat this time in terms of results. Okay guys, so let us start. Why do we need a reading part? This particular statement, ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल specifically बैठा लीजिए. ठीक है. If you are not a reader, if you just want to listen thing, you are not reading things, then it is very difficult for you to perform really well in your life in future. Because to becoming a leader, you need to be first of all listener and reader. Then only you will be able to communicate things. अदरवाइज आज की सिचुएशन को भी अगर आप प्रेजेंटली कंसिडर करें या पास्ट में जब बड़े बड़े लीडर्स को आप पढ़ते हैं, एक बात आपको कॉमन देखने को मिलेगी. दुनिया का हर एक बड़ा लीडर, एक कॉमन चीज उनको मिलेगी कि वो रीडर्स अच्छे थे. सो व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन रीडिंग? बिकॉज through the technology, through the channelization of social media, through the vast like communication modes, we are now putting forward a shortcut. We are not moving for a old orthodox method of learning what I personally used to have, your father, your mother, your parents, your grandfather used to have as reading on a particular thing. Nowadays the nowadays the kids are more on a shortcut mode, and they are just listening newses. That to be some social media platform, and that to be thanks to YouTube, which is providing us so instant newses, but simultaneously those newses may not be very genuine or very accurate. They may distract you, they may try to influence you in terms of many things. So you need to be smart, you need to be like very very sure what you are reading, but most importantly reading. So ultimately no shortcut, absolutely no shortcuts. ओनली वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट होना चाहिए. आपको ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम डिवोट करना है रीडिंग की तरफ. जितना ज्यादा आप रीड करते हैं उतना ज्यादा टाइम आप
डिस्ट्रैक्शन से अलग हट रहे हैं. बट अनडाउटेबली रीडिंग में भी आई विल सजेस्ट व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि रीड करने में सर मैं तो ऑनलाइन में काफी सारे जर्नल्स को रीड करता हूँ, ऑनलाइन काफी सारे कंटेंट्स को रीड करता हूँ, तो वो भी हमें बेसिकली पैरेलली अंडरस्टैंड करते हुए चलना है. ठीक है. So I'll share few things. I'll definitely come up with this, but please remember this statement: today a reader, tomorrow a leader. This is very very important, and ये आपके लिए काफी crucial होगा अगर आप इस बात को follow करते हैं. And trust me, those who are not following, that will be very difficult for them for entering into any exam. आप उठा के देखिए सारे एग्जाम्स, क्लैट का देखिए, मैनेजमेंट एग्जाम्स देखिए, कैट एग्जाम्स देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स देखिए. One thing you will find common in all exams, all are comprehension based exams. So अगर आप रीड नहीं कर रहे हैं, it is difficult to comprehend. It is very very difficult to analyze this situation. Okay guys, चलिए. So most importantly, what to read, this is a crucial question. I'm sure आप ये सेशन को केवल और केवल लिसनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं. You are parallelly making notes, you are parallelly trying to communicate yourself that I need to do this, I am doing this, and I need to do this, I need to work on A B C D. उसके बाद आप उसको तभी आप एनालाइज कर पाएंगे इन फ्यूचर में जाके. ऐसा मत सोचिए कि जस्ट मैं सुन लेता हूँ, सुन के मुझे सब क्लियर हो जाने वाला है. नो. ठीक है. सो व्हाट टू रीड इन न्यूज़पेपर. सबसे पहले क्या रीड करना चाहिए. Undoubtedly we need to read newspaper. This is there is no shortcuts on it. Newspaper is something which provide you the detailed and crisp detailed and most accurate news, because ये instantly publish नहीं होता है. याद रखिए, जो भी इंस्टेंट न्यूज होती हैं उसमें काफी हद तक न्यूज से ज्यादा मसाला होता है, उसमें काफी ज्यादा कोशिश की जाती है कि उसको पब्लिशाइज किया जाए, उसमें ज्यादा आपको मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है. बट न्यूज़पेपर में जनरली यू विल फाइंड न्यूज़पेपर कम्स ऑन द सेकेंड डे, सो एक कंप्लीट टाइम मिलता है. तो वहां पर ये जो न्यूज़ेस होती हैं उसमें एनालिसिस होता है, फैक्ट्स होता है, और जो नंबर्स भी शो किए जाते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग शो होती है, वो काफी रेलिवेंट होती है एज कम्पेयर टू the news channels we are watching. Or I really afraid about YouTube channels. Trust me, YouTube channels are something which is really really hazardous. अगर वो आप constantly read करते हैं और constantly watch करते हैं, it will be a difficult for everyone, क्योंकि those YouTube channels may provide you a wrong information, may distract you on a particular thought process. एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तरफ वो आपको लेके जा सकते हैं, विच में हर्ट यू ऑन अ लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव, जो मैं आपको आज शो करूंगा, कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा इसमें आपको. ठीक है. अब कौन से न्यूज़पेपर्स हैं. अगर गाइज आप पहले से न्यूज़पेपर्स पढ़ते आ रहे हैं, सो इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट नाउ दिस इज अ टाइम यू शुड शिफ्ट इनटू द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. बट अगर आप पहले से न्यूज़पेपर्स नहीं रीड कर रहे हैं, देन इट इज रिकमेंडेड टू स्टार्ट विद टाइम्स ऑफ इंडिया or probably the Hindustan Times type of newspaper. But you need to shift into the Hindu and Indian Express. अब Hindu and Indian Express में से either one of them is recommended. विकल्प एजुकेशन इस इन कांस्टेंट बेसिस में हम अपने स्टूडेंट्स को बोथ द न्यूज़पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट डेली बेसिस पे फॉरवर्ड करते हैं. इसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बहुत बड़े न्यूज़पेपर होते हैं. तो हमें जब बच्चे बोलते थे कि सर इतना सारा क्या पढ़ें, तो उस पे भी हमने लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर के बाद से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, एंड there is a supplement that we publish daily, that is what to read in newspaper. So what to read in a newspaper is basically a supplement which has a major focus that what newses you need to read in the Hindu and Indian Express both, considering that उसमें से कौन सा आपके लिए important है. समटाइम हो सकता है कि उसमें से कुछ न्यूज हमसे मिस हो जाए या कोई ऐसा न्यूज आ जाए जो शायद आपको रेलिवेंट ना लगता हो, बट स्टिल I'm telling you that will going to segregate newses as per the requirement. That is I'm assuring you. ठीक है. A second, give me a second. Yeah. My screen is visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, thank you. So the Hindu and the Indian Express
is basically two important newspaper which have almost all types of writers or influencer, or you can say the different types of people available, those who come for columnist as a guest columnist, they come for as a editorial thought process के लिए they come and discuss, and every single type, it's not only a one specific पर्टिकुलर टाइप के ही लोग आपको ज्यादातर मिलेंगे. तो ये एक अच्छी बात है इस इन दोनों न्यूज़पेपर में. सो आई वुड सजेस्ट, although we are living in COVID time at present, it is difficult to gather these newspaper, but I would suggest either one of the newspaper should come at your place, and second newspaper you should read online. ऑनलाइन में भी व्हाट आई वुड सजेस्ट, यू आर स्मार्ट जनरेशन, यू नो हाउ टू डू इट. हम लोग व्हाट्सएप में इसको फॉरवर्ड करते हैं, तो व्हाट्सएप में आप अपना कंप्यूटर में या लैपटॉप में जाके आप इसको व्हाट्सएप में से निकाल के देयर यू कैन रीड, बिकॉज इन मोबाइल फोन यू मे फाइंड डिफिकल्ट टू रीड सो मेनी न्यूज़ेस एट अ टाइम. सो दैट इज व्हाट रिकमेंडेड. इसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो इकोनॉमिक न्यूज़ेस पे ज्यादा एम्फेसाइज होता है. इसमें बिजनेस न्यूज़ेस काफी ज्यादा होती हैं, फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज होती हैं. रिसेंटली आरबीआई ने अपने जो बैंक रेट्स हैं उसको चेंज नहीं किया, तो उसका इंपैक्ट आपको सबसे, ऐसा नहीं कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कवर नहीं करेंगे, बट इकोनॉमिक टाइम्स विल कवर इन अ मोर डिटेल्ड मैनर. सो इट इज मोर ऑन इकोनॉमिक न्यूज़ेस, मोर ऑन बिजनेस न्यूज़ेस. सो दीज न्यूज़ेस आर आल्सो क्रूशियल एज पर योर एनालिसिस पर से. बट उसके लिए मुझे ये मानना है कि आप डेली बेसिस पे ऑनलाइन पे या उनकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं इफ यू हैव interest on economic newses. If you don't have that much of interest on economic newses, I would recommend the Hindu and Indian Express के economic section को ही आप डिटेल में रीड करिए. बट इकोनॉमी को you cannot ignore, this is for sure. इकोनॉमी का अगर आप इग्नोर करेंगे, बहुत बड़ा पोर्शन आपसे मिस हो जाता है. ठीक है. सो न्यूज़पेपर अनडाउटेबली वी नीड टू रीड, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दैट. सेकेंड थिंग इज, अगर आप इनिशियल लर्नर हैं, स्टार्ट किए हैं आपने रीड करना, तो स्टोरी बुक्स से आप शुरू कर सकते हैं. आजकल ऑनलाइन स्टोरी बुक्स काफी अवेलेबल हैं. चाहे तो चाचा चौधरी की कहानी को भी आप अगर लें तो वो भी ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, से लेके काफी ज्यादा आपके जो सुपर हीरोज हो सकते हैं उनके आजकल स्टोरी बुक्स हैं, और छोटे छोटे स्टोरी बुक्स आपको मिलेंगे. इन स्टोरी बुक्स में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यू विल गेट ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग. उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको वो जाने का जरूरत नहीं है, आपको एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा. और उसमें मेजरली अगर आपको कंसिडर करेंगे, जो भी आपको न्यूज़ेस, जो भी स्टोरीज मिलेंगी, इससे हमारा ऑन अ ब्रॉडर स्केल हमारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाला है. सो ये अच्छी बात है. अगर आप स्टोरी बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन लॉन्ग रन. इसके बाद द ultimate step that you need to take it forward is to start reading novels. If you have that ability to read newspaper and story books on a daily basis, I think you can shift to this level. This is an ultimate level. अगर आप यहाँ पर पहुंच गए तो you can understand that आप एक हैबिचुअल रीडर्स हो जाएंगे. और एक हैबिचुअल रीडर, ध्यान रखिए, एक स्टेटमेंट शिफ्ट के तौर पे ही डिस्कस होते हैं. कभी भी जो रीडर होता है वो याद रखना आप, वो उसके पास एक यूनिक थॉट प्रोसेस भी होता है, एंड वो बहुत मॉडरेट और न्यूट्रल टाइप ऑफ पर्सन्स होते हैं, रादर देन दोस हु हैव ऑन अ स्पेसिफिक माइंडसेट विद इन देमसेल्फ. तो आप सोशल मीडिया में आप चाहेंगे तो आपको मिलेंगे लोग बटे हुए हैं दो पर्टिकुलर हिस्से में, बट अगर आप नॉवेल्स पढ़ेंगे, वो भी वैरायटी ऑफ नॉवेल्स, तो आपके अंदर स्लोली एक यूनिक मेथोडोलॉजी और यूनिक प्रोसेस आपके अंदर डेवलप होने वाला है. तो दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड एवरीवन. स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर, है ना, एंड स्टोरी बुक्स. एटलीस्ट डिवोट मिनिमम, मुझे लगता है 2 to 3 hours ऑन दिस. And if you have reached to the next level, then compulsory go to novels. Novels तक पहुंचना बहुत जरूरी है. This is what I would suggest you everyone. ठीक है. So this is you need to devote. I specifically urge every one of you, requesting you, please ignore YouTube channels, please ignore social media पे आने वाली न्यूज़ेस को. They will be absolutely absurd, they will be totally destructive. आपके माइंड को एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रेन किया जाता है, करती हैं, और वो आपको लॉन्ग रन में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देने वाला है.
सो आई वुड सजेस्ट कि भाई ये सब चीजों से दूर रहो. सोशल मीडिया इज जस्ट फॉर एन एंजॉयमेंट, इट्स फॉर फन, इट इज नॉट फॉर नॉलेज. आई एम अश्योरिंग यू कि नॉलेज के लिए आपका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव आपके सामने लिखा हुआ है. ठीक है, तो मेक श्योर ये आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो ऑल्टरनेटिव टू रीडिंग. याद रखिएगा इस बात को. अब इसके बाद हमने क्या किया है न्यूज़पेपर में, और आपके रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैड डिवाइडेड न्यूज़ेस इनटू जनरल नॉलेज इनटू थ्री ब्रॉडर कैटेगरीज. Three broader categories means they can be static, they can be current affair, but now there is third specific category which has been mentioned in second number, that is static with current aspect, is now coming in very frequently in many exams. Okay, so you know what is static GK या static general knowledge means. Static basically is history, geography and so on and so forth. साइंस का नॉलेज, आपका बेसिक इकोनॉमी का नॉलेज, हिस्टोरिकल नॉलेज, बेसिक सिविक्स का नॉलेज. ठीक है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन का नॉलेज विच जनरली डोंट चेंज. ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो चेंज होता है. तो स्टैटिक है वो बिल्कुल चेंज है. जो हिस्ट्री हुआ है वो आप जानते हैं वो बदल नहीं सकता है, वो एज इट इज रहने वाला है. सो हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं, ये जो न्यूज़ेस होती हैं, दीज न्यूज़ेस आर मेमोरी बेस्ड न्यूज़ेस. ठीक है, मेमोरी बेस्ड. आपको याद रखना पड़ता है, इसमें कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है. आपको पास्ट में जाना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, इसके लिए हमने कुछ वीडियो सेशंस बना के रखे हैं, और हमारे सेशन जिसमें होते रहते हैं वो अगर आप देख लेंगे तो बहुत हद तक एक काफी बड़ा रिवाइज हो जाता है. और ये जो आजकल पोर्शन है ये जनरली अब आपको मैक्सिमम एग्जाम्स में नहीं मिलेगा. तो आई वुड रिक्वेस्ट स्टैटिक जीके पे बहुत ज्यादा अभी इंफेसाइज नहीं करना. जनरली क्या होता था, जब हम ये क्लैट की प्रिपरेशन करो या मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करो या होटल मैनेजमेंट की करो या इस टाइप के जो भी एग्जाम्स की जब अपन प्रिपरेशन में जाते थे, तो या कोई भी और इंफॉर्मेशन पे अगर आप मूव करते थे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि हम शुरुआती स्टैटिक जीके से करते थे और फिर हमको लगता था कि इतना वास्ट जीके है और अल्टीमेटली हम करंट वाले एस्पेक्ट को भूल जाते थे. तो उसके कारण ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन होता था और जीके हमेशा से टफ लगता था. बट अभी सिचुएशन बदल गया है. इनफैक्ट अभी जो सिचुएशन है वो कंसिस्टेंट रीडर्स के लिए है, जो रीड करते हैं कंसिस्टेंटली न्यूज़पेपर, उनके लिए ये एक हेल्दी सिचुएशन है, रादर देन आपने पुराना जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको लेके. ठीक है, तो स्टैटिक इज मेमोरी बेस्ड. वो अब उसकी जरूरत मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आपको पड़ेगी, बट तो भी एक स्टोरी के तौर पे आपको पढ़ना चाहिए, स्टोरी के तौर पे करना चाहिए, बट वेरी लेस इंफेसाइज इस पे करना है आपको. ठीक है, लेस एम्फेसाइज. अब जो थर्ड कैटेगरी है, जो अनडाउटेबली ये फर्स्ट है और यहां थर्ड लिखी जो है, करंट अफेयर्स. दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. यू मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली इज एक्चुअली वॉकिंग अराउंड अस. हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास इर्द गिर्द क्या क्या हो रहा है. पता होने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल्ड में 1 to 1 पता हो, और ये भी नहीं है कि आपको केवल कोई ऊपर से कोई चीज पता हो और उसके आगे का कोई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता हो. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर प्रकार की चीजों का होना चाहिए. तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग वैक्सीनेशन फ्रॉम 1 May फॉर 18 years and above. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई ये करंट अफेयर्स में आपके पास आएगा कि कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है. तो उसका एनालिसिस ये होगा कि व्हाट इज द रीजन दैट गवर्नमेंट इज स्टार्टिंग. तो आपको करंट अफेयर को केवल और केवल उसके फैक्ट्स पे फोकस नहीं करना है. ये मैं आपको बताना चाहता हूं. इसमें करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि आप उसको पढ़कर उसकी कॉम्प्रिहेंशन पे भी जा रहे हैं. ठीक है, तो यू नीड टू नो कि अभी 3 वैक्सीन हैं, तो 3 वैक्सीन अपने पास अवेलेबल है, इनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो 18 के अबाव को वैक्सीन 1 May के बाद लगेगा. अब व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, तो ABCD आपको रीजंस पते होने चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट अब नाउ बिकॉज ऑफ द राइजिंग केसेस, बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स शोन बाय द न्यू म्यूटेंट जो वायरस आया है, सेकेंड म्यूटेंट वायरस, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. अगर आपके अंदर वो सब अपने को पता है तो वी कैन से दैट वी आर रीडिंग ऑन अ कांस्टेंट बेसिस. ठीक है, सो करंट अफेयर अनडाउटेबली एक ही सोर्स है और वो है न्यूज़पेपर, एंड इट इज वेरी रेलिवेंट. ठीक है, एब्सोल्युटली रेलिवेंट. मैं इसमें और डिटेल में आऊंगा न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है आपको. दिस इज सम पार्ट which is nowadays added in a very frequent manner.
Now what does this static with current aspect means? Static with current aspect का means का मतलब ये हुआ, आपने देखा होगा कि चाइना और इंडिया के बीच में क्लैशेस चालू हुए लास्ट ईयर गैलवान वैली पे। ठीक है, अब गैलवान वैली पे क्लैशेस चालू हुए, उसके बाद काफी बड़ा हमारा चाइना और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम हुआ। नाउ जब आप पढ़ने जाएंगे चाइना और इंडिया की न्यूज, देन यू विल रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मैनी मैनी थिंग्स, कई सारी चीजें, जैसे जिस पर्टिकुलर प्लेस पे, अभी मैं बहुत डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे ये फाइट चालू है, उस पर्टिकुलर प्लेस को जो बॉर्डर बोला गया है वो एलएसी बोला गया है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये आपका एक स्टैटिक पार्ट है। अब वो स्टैटिक पार्ट आज करंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में वहां पे क्लैशेस हुए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्टैटिक विद करंट एस्पेक्ट। अभी काला पानी जर करके एक प्लेस है जो हमारे पास उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे कहीं आता है। ठीक है, तो उसको लेके भी बड़ा क्लैशेज हुआ, नेपाल के साथ प्रॉब्लम हुआ। अब आपको पता है कि नेपाल ऑलरेडी हमारा एक फ्रेंड रहा है, तो उसका प्रॉब्लम्स क्या हुए कि चाइना के थ्रू उन्होंने सपोर्ट किया, और उसके बाद इसमें इंडिया को उन्होंने एक नया मैप डिक्लेयर किया। तो ये एक स्टैटिक पोर्शन है कि वो इंडिया को मिला हुआ हिस्सा है, इंडिया के कब्जे में आता है, बट कहीं ना कहीं उसका आज प्रेजेंट में उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो इफ यू विल आस्क मी, वेरी रेलिवेंट हो जाता है वो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर प्लेसेस में इंडिया और नेपाल का डिस्प्यूट चालू है, कौन से पर्टिकुलर प्लेसेस में इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चालू है, गैलवान वैली में क्लैशेस क्यों। तो इसका एक एस्पेक्ट पास्ट है, उस पास्ट को हमने प्रेजेंट में जोड़ के रखा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट बेसिकली इज ऑल अबाउट। एक एग्रीमेंट है नागालैंड के साथ, नागालैंड वालों के साथ, एक नागा जो एक नागा हमने जो पैक्ट साइन किया उसको लेके। अब नागालैंड को लेके हमारा एक बहुत पास्ट हिस्ट्री रहा है, 60-70 ईयर्स को लेके वो रहा है, बट अभी रिसेंटली वहां पर किस तरीके के अपग्रेडेशंस हो रहे हैं। तो जब आप स्टैटिक विद करंट एस्पेक्ट बोलते हो, दिस पर्टिकुलर टाइप बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट गाइस, सिंपली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको यही पढ़ना है, ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस करना है। ज्यादातर करंट अफेयर्स विल बी वन लाइनर्स, बट स्टैटिक विद करंट एस्पेक्ट विल हैव अ इंटायर एनालिसिस, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। तो आपको जब आपने कोई ऐसी न्यूज पढ़ी तो आपने देखा कि उसका एक बैकग्राउंड है, टाटा और मिस्त्री, ठीक है, साइरस मिस्त्री के बीच में एक क्लैश चल रहा है, एक प्रॉब्लम चल रहा था रिसेंटली जो सॉर्ट आउट हुआ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के साथ के फेवर में वर्डिक्ट दिया, बट उसका एक बैकग्राउंड जो है वो 3-4-5-6 सालों से चला जा रहा है, इनके बीच का डिस्प्यूट क्या है। तो कहीं ना कहीं आप जब ये न्यूज पढ़ते हैं तो एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक स्टैटिक पार्ट होता है, वो न्यूज हमको करना चाहिए। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ये बाइफोकेशन बहुत क्रूशली मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड एस्पेक्ट, उसके बाद आई एम श्योरिंग टेलिंग यू थर्ड, और स्टैटिक अलोन इज नॉट दैट रेलिवेंट नाउअडेज। ठीक है, उसका रेलिवेंस बहुत ही कम है, और आप भी जानते हैं इतना वास्ट सिलेबस होता है कि पढ़ते पढ़ते भी आप थक जाओगे, कर नहीं पाओगे आप इसमें। इसलिए इन दोनों के लिए बस एक ही काम करना है, वो है आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और न्यूज को डिग करना है। ठीक है, अभी अब टाइप्स ऑफ न्यूज़ेस क्या करना है हमको, वो बेसिकली वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमने बेसिकली क्या किया है, 3 प्रकार के उसमें पॉइंट्स आपको डिवाइड करके रखे हैं। मैं पर्सनली ये एक्टिविटीज में कम से कम नहीं तो भी 7-8 ईयर्स से इन्वॉल्व हूं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू से दिस कि मुंबई पुणे के कई कॉलेजेस में मैं स्टिल न्यूज एनालिसिस के सेशंस कंडक्ट करता हूं, और काफी सारा एसोसिएशंस मेरे अलग अलग कॉलेज में। दिस इज माय पैशन। सो ये मैं जो आपको बोल रहा हूं, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और ऑनेस्टली आपके साथ मेरे प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। तो व्हेन यू विल फाइंड effectively 3 types of news, trust me, in any newspaper close to 70% news you will find either avoidable or irrelevant. Avoidable means जिसको आपको नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है, और इररेलीवेंट मतलब जो जबरदस्ती की न्यूज़ेस हैं, लाइक स्टेट का कोई न्यूज आया, या कोई पर्टिकुलर किसी का ऑबिचुअली हुआ, कोई अपॉइंटमेंट जो बहुत रेलिवेंट नहीं हुआ, तो ये अवॉइडेबल न्यूज़ेस होती हैं। तो ये जो पोर्शन है ना आपके न्यूज़पेपर का 70% है।
तो जो बचा हुआ 30% है वो इन पे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये तो अवॉइडेबल क्या है वो मैं आपको लेटर स्टेज में पता चल ही जाएगा। इंपॉर्टेंट जो है सीए मतलब करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो इस पे पहले मैं इंफेसाइज करता हूं आपको। याद रखिएगा जो न्यूज होती हैं उसमें हमारा जजमेंट बहुत प्रॉपर होना चाहिए कि देखिए यहां फाइट किस बात का चल रहा ना कि आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं ये सेशन ही कंडक्ट इसलिए कर रहा हूं और हम लगातार करंट अफेयर्स के सेशन पूरे वीक में एक बार करते ही करते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा सेशन हो, और गेस्ट स्पीकर्स को भी कोशिश करते हैं बुला के बताएं आपको कि भाई वो लोग कैसे पॉसिबिलिटीज वो क्या करते हैं हमारे अलावा भी। तो ब्रॉडली जब आप देखेंगे, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि करंट अफेयर्स को निकालना भी एक स्किल है, करंट अफेयर्स की न्यूज़ेस निकालना। ऐसा नहीं है कि केवल करंट अफेयर्स हमने बोलने के लिए अपन ने देख लिया और उसको नहीं किया। तो ये स्किल्स का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये रेलिवेंट है, मतलब एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या मेरे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको पता होना चाहिए कि ये रेलिवेंट है कि मुझे इसको इग्नोर करना है। तो वो स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप रीड करेंगे यू विल रियलाइज कि भाई ये रेलिवेंस है, ये रेलिवेंस। मैं भी आपको सपोर्ट करता हूं, आप मुझसे पूछिए, बात करिए कि सर इसको रखूं या इसको छोड़ दूं। ठीक है, तो पहला जो एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स के लिए, मैं यहां पर 3 स्टेप्स आपको बताऊंगा। ये 3 स्टेप्स को बहुत क्लियरली आपको याद रखना है। ठीक है, पहला होता है न्यूज को आइडेंटिफाई करना, रेलिवेंस और इररेलेवेंस में न्यूज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप वेन एवर यू आर डूइंग इट, वेन एवर यू आर रीडिंग अ न्यूज। ठीक है, तो न्यूज का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको डिग करना। अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद यू हैव रियलाइज्ड दैट कि ये न्यूज बहुत रेलिवेंट है मेरे लिए और वो न्यूज रेलिवेंट है, तो मुझे इसको पढ़ना है। अब पढ़ने के बाद आई नीड टू अंडरस्टैंड द पास्ट बैकग्राउंड ऑफ इट। past background, for example you can take it a simple example of US election। तो यूएस इलेक्शन की न्यूज हमने देखा, एक रेलिवेंट न्यूज है क्योंकि एक बड़ा बदलाव हुआ और डेमोक्रेट्स आए। अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके पहले कब रिपब्लिकन्स हारे थे इलेक्शन में, 2 बार इलेक्शन जीतने के पहले रिपब्लिकन्स में मेजर कौन कौन से प्रेसिडेंट हुए, डेमोक्रेट्स के कौन से हुए, डेमोक्रेटिकल जो प्रेसिडेंट है वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, या डेमोक्रेट्स जो है उनकी क्या सोच है, रिपब्लिकन्स की क्या सोच है, ये आपको डिक करने के पॉइंट में आएगा। और जो बी वाला जो एस्पेक्ट है ना, जनरली वहीं पे बच्चे मिस करते हैं, वहीं पे मिस करते हैं। आप पढ़ते हो, मैं आपको समझाऊंगा, मैं डांटूंगा आपको, मैं बोलूंगा, आपके पेरेंट्स को भी कई बार फोन कर दूंगा हमारे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, अनडाउटेबली आप पढ़ोगे, पर पढ़कर आप उसको हेडलाइन पे छोड़ दोगे। वो जो डिगिंग वाला जो सेक्शन है ना, उसके बारे में डिटेल तक जाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं न्यूज देखा इंपॉर्टेंट है, उसमें से कई चीजें मुझे ऐसी लगी कि ये मैं पहली बार, आज भी बेटा मैं, आप में से कई लोगों की एज नहीं है उतनी, उतने सालों से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। आई स्टिल रिमेंबर 2000-2001 से मैं न्यूज़पेपर रीड करते आ रहा हूं। हिंदी में पढ़ता था, जब मैं एमबीए करने गया तो मुझे इंग्लिश में पढ़ने को बोला गया, तो मैं इंग्लिश में चालू किया 2009-10 के बाद से। बट ट्रस्ट मी, एक अच्छी बात ये थी, खासकर न्यूज़पेपर के आ जाने, ये मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल के आ जाने से, वन थिंग व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड डिगिंग न्यूज़ेस। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपको ये सब पता कैसे होता है, तो भाई उसका एक रीजन है कि मैं जनरली न्यूज को बहुत सालों से डिग करते आ रहा हूँ, उसको बहुत सालों से मैं उसको के बारे में पढ़ते आ रहा हूँ। तो पहला एस्पेक्ट होने के बाद डिग करना मतलब उसके बारे में डिटेल बैकग्राउंड लेके आना। जैसे मैंने आपको रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स के, तो ये कितने बार करना पड़ेगा आपको, यूएस इलेक्शन का के बारे में अगर मैंने आपको पूछा तो आपको कितने बार होगा, एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब भी कभी आएगा कि भाई जो बिदेन, प्रेसिडेंट बिदेन इस की ये पॉलिसी ये है, तो आप तुरंत रिलेट कर पाओगे, यार प्रेसिडेंट बिदेन इज मोर लिबरलाइज्ड, और जो रिपब्लिकन्स होते हैं वो बहुत नेशनलिस्ट होते हैं, तो लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट इस तरीके का डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस आपको अपने आप समझ आएगा कि ये पॉलिसी ऐसी बनती है, ये इस तरीके से, दिस इज द वे यू कैन डेवलप स्लोली स्लोली। टाइम लगता है बट वो करते हैं। एंड तीसरी बात बिल्कुल मत भूलिएगा, ये तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे यहां पर भी मिस कर जाते हैं, और वो लिखा है, ये देखो, नोट्स।
those who are preparing for exams like CLAT, exams like management exams like IPM, it is very important to make notes. आप खुद सोचो, एग्जाम आप देने वाले हो कम से कम 4-6 महीने के बाद, कुछ लोग तो 2-2 साल से प्रिपरेशन करते हैं. कैन यू एक्सपेक्ट कि आप 1 साल का या 6 महीने का पहले का न्यूज याद रख पाओगे? नॉट पॉसिबल. सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ इट? यू नीड टू राइट दोस न्यूज़ेस. Not news is bullet points. So I will write A, B, C, D bullet points. Like I will write that कि भाई अभी recently अपन ने देखा कि UAE और सऊदी अरेबिया के बीच में, UAE और इजराइल के बीच में डील हुआ. तो यूएई और इजराइल के बीच में जो डील हुआ, उस डील में यूएई और इजराइल ने क्या क्या पॉइंट्स पे बात किया. तो ये अगर आपको पता है तो आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी ये न्यूज आएगा इजीली रिलेट कर पाओगे और उसका करंट अफेयर्स भी बनेगा भाई. तो ये 3 पॉइंट्स बहुत क्रूशियल है बेटा. ये सबसे सबसे ज्यादा मैंने आपको इंपॉर्टेंट सजेशन दिया. न्यूज को आइडेंटिफाई करो, डिग करो और उसके रेलिवेंट नोट्स बनाओ. इट टेक्स टाइम बट इट एक्चुअली रियली 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 हेल्पफुल. मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत बड़ा एफर्ट्स आपका इस पे समझ में आएगा. और आप देखिएगा विद इन अ मंथ आपके मन से जो फियर है न्यूज़पेपर को लेके, वो अपने आप स्लोली स्लोली कम होगा. देन न्यूज़पेपर में जो सेक्शन होता है आरसी, ये सेक्शन होता है रीड करने के लिए. हमारी इंग्लिश की जो कमांड है, हमारा जो परफेक्शन है, उसको इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है. अगर आप नॉवल नहीं पढ़ सकते, अगर नॉवल पढ़ सकते हैं ना, तब तो ये करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा. फिर भी आई वुड सजेस्ट कि एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए. तो जो एडिटोरियल वाला सेक्शन है, ओपिनियन वाला सेक्शन है, वो अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कमांड ओवर इंग्लिश इंप्रूव होता है. आई एम अ कंप्लीटली हिंदी मीडियम पर्सन. मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा पूरा वर्नाकुलर बैकग्राउंड में रहा है. एक ही रीजन है कि मैं अपना कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत इंप्रूव कर पाया. दैट इज बेस्ड बिकॉज ऑफ आई वॉज कॉन्स्टेंटली रीडिंग एडिटोरियल्स एंड दैट इज ऑल्सो मेड मी मतलब नॉलेजेबल. मैं जब नॉलेज की बात करता हूं, आज मैं कोई टॉपिक के बारे में डिस्कशन करता हूं, तो आई मे नॉट बी एबल टू टेल यू द फैक्ट्स. नंबर्स मुझे भी याद नहीं रहते, आपको भी नहीं रहेंगे. बहुत जल्दी आप नंबर्स नहीं रख सकते याद, बट अबाउट द स्पेसिफिक न्यूज अंडरस्टैंडिंग आप मुझसे पूछेंगे, आई कैन डिस्कस एनी टाइप ऑफ न्यूज टू यू. सो ये तभी पॉसिबल है जब आप ये कंटेंट रीड करते हैं. तो ये कंटेंट में मुझे जनरली आपको न्यूज में, हाँ हो सकता है पढ़ते पढ़ते कुछ रेलिवेंट रहे तो आप लिख लो, नहीं तो उसको फिर आप इग्नोर कर सकते हैं. बट ज्यादातर इसमें पढ़िएगा. शुरुआत मेरे ख्याल से आप यहीं से करा करिए जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. एडिटोरियल से शुरू करो. इंग्लिश में आपका कमांड बढ़ेगा. ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, उसका क्या परसेप्शन है, उसका क्या ओपिनियन है, ये अगर आप देखेंगे. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नाम का आपका इंग्लिश का सेक्शन प्योरली बेस्ड ऑन एडिटोरियल्स होता है, यहीं से शुरू होता है. ठीक है. सो मेक श्योर दैट आप आरसीज जो के लिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए एडिटोरियल एंड ओपिनियंस पढ़ते रहेंगे. ठीक है. डोंट मेक सच नोट्स, बट ठीक है. तो ये वाला स्लाइड याद रखिएगा और बहुत क्रूशली जो मैंने सजेशंस दिए वो ध्यान रखिएगा. अब कौन कौन सी न्यूज़ेस आपके लिए रेलिवेंट है? अनडाउटेबली नेशनल न्यूज़ेस का रेलिवेंस है. नेशनल प्रायोरिटीज पे 1 मई से अभी वैक्सीन चालू हो गई. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में, एमपीसी में आरबीआई ने कुछ चेंजेस नहीं किए, तो ये एक रेलिवेंट न्यूज है. ठीक है. नेशनल लेवल पे बैंकों का मर्जर होने वाला है, या इस टाइप की कोई न्यूज रहती है जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो आप डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं. कोई नेशनल प्लेयर कोई इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया. आप जानते हैं कि इस साल टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, तो उसमें अभी हर प्लेयर क्वालिफाई कर रहा है, वो मे नॉट बी मोर रेलिवेंट, बट अगर किसी ने कोई मेडल लेके आया तो वो बहुत रेलिवेंट हो जाएगा. आईपीएल अभी चल रहा है, वो रेलिवेंस पे नहीं जाएगा. ठीक है. नेशनल इंपॉर्टेंस वेरी वेरी अच्छा रहेगा. इंटरनेशनल में जहां इंडिया का एस्पेक्ट है, so you must be aware about the treaty between 4 nation, that is Quad. So Quad is basically a organization between 4 important nations, और ये यूएस का एक प्रकार का स्मॉल नाटो है. इसका मिनी नाटो के नाम से जाना जाता है क्वाड. तो क्वाड मतलब जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एशियन कंट्रीज हैं.
उसका कंपैरिजन किया उसको उनका जॉइंट वेंचर किया है यूएस के साथ, ताकि एक मिलिट्री सपोर्ट और एक कॉमन एक्सरसाइजेस की जा सके उसको लेके। तो ये एक इंटरनेशनल न्यूज भी है, इसमें इंडिया का एस्पेक्ट भी है। तो क्वाड के बारे में आप पढ़ रहे हो तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इंटरनेशनल न्यूज जहां इंडिया इंक्लूडेड है, जहां इंडिया का इंक्लूजन नहीं है वहां पे नहीं है। अब एक कुछ न्यूज़ेस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल ईरान पे जो सेक्शंस लगे हुए हैं, ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, अब ईरान पे सैंक्शंस हटाए जा रहे हैं या उसके ऊपर बात चल रही है, इसका इंपैक्ट इंडिया पे जबरदस्त पड़ने वाला है। तो समटाइम दिस इज योर एबिलिटी। ऑल्दो ईरान के सैंक्शन से इंडिया का बहुत ज्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, जनरली ऐसा लगता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप रीड करेंगे यू विल फाइंड ईरान पे सैंक्शन जो हटाए जाएंगे उसका इंपैक्ट इंडिया पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है पॉजिटिवली। तालिबान को यूएस और तालिबान ने हाथ मिला लिया और अभी धीरे धीरे अफगानिस्तान से सेनाएं जा रही, इसका इंडिया पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। So this is international news, may not be directly involved India but have an impact on India. So two types of international news. One, India का impact है, India involved है. Second is India पे impact आ रहा है, एक involvement और एक impact, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंस मैंने बता दिया, बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर कैट 2020 पेपर, शॉकिंगली कैट 2020 में दे हैव कम अप विद इकोनॉमिक क्वेश्चंस व्हिच इज जनरली नॉट बेस्ड ऑन अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे ऊपर क्वेश्चन आया था, जो आरबीआई की जो इंटरनल पॉलिसीज होती हैं उसको बेसिस पे करते हुए। वो इतना रेलेवेंस नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई क्वेश्चन कभी आएंगे। वो कैट 2020 वाले, वो क्लैट 2020 वाले वो भी उस बात को मानेंगे, इस बात को कि गलती हुआ। बट क्या पता होना चाहिए, अभी आरबीआई की पॉलिसी है, एनपीए क्या है, बैंकों का मर्जर है, ये सब पता होना चाहिए। आज ही का लेटेस्ट न्यूज है कि आरबीआई ने बोला कि अगर पब्लिक बैंकों को मर्ज नहीं किया गया, बेचा नहीं गया, तो 20% का एनपीए हो जाएगा, 18-20% का। ये न्यूज इज रेलिवेंट है आपका। अब स्टॉक मार्केट तो रोज खुलेगा, रोज बदलेगा, तो वो थोड़ी ना रेलिवेंट न्यूज है आपके लिए। स्टॉक मार्केट इररेलेवेंटली बढ़ गया या इररेलेवेंटली कम हो गया, वो रेलिवेंट न्यूज है। गोल्ड के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो दीज आर ऑल थिंग्स विच मे बी रेलिवेंट। धीरे धीरे उसमें करेंगे, ये इंटरेस्ट पे काफी बेस्ड है। स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर यू कैन अंडरस्टैंड विच इज हैविंग अ नेशनल इंपॉर्टेंस, not state level. IPL is absolutely relevant, but India is playing with New Zealand in World Test Championship is very relevant. दुनिया में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है और ये प्राउडली वी कैन से दिस, इंडिया इज टॉप ऑफ द टेस्ट रैंकिंग और इंडिया न्यूजीलैंड विल प्ले इन इंग्लैंड, आई थिंक इंग्लैंड पे ही आई थिंक वहां पे होने वाला। तो ये एक रेलिवेंट न्यूज है। आर्ट्स को लेके, कल्चरल न्यूज़ेस को लेके, जो नेशनल इंपॉर्टेंस पे, कोई नेशनल हेरिटेज को लेके है, कोई उसको ध्यान में रख के हैं, तो वो आपको देखना है, ठीक है। अभी जैसे वाराणसी पे एक मॉस्क्यू को लेके वहां पर एएसआई जो है उन्होंने एक सर्वे करने के लिए परमिशन दी है, तो वो कल्चरल न्यूज है, तो उसको लेके आपको रेलिवेंटली पढ़ना पड़ेगा। ऑल्दो इट्स अ न्यूज ऑन बनारस के ऊपर जो न्यूज है उसके लिए, बट उसका नेशनल इंपॉर्टेंस खड़ा हो गया। अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन, अब कोई बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ठीक है, लाइक कैग, सीएजी, ईडी, सीबीआई, ठीक है, आरबीआई, ये जो संस्थाएं हैं उनमें कोई अपॉइंटमेंट होता है या रेजिग्नेशन होता है, बिल्कुल रेलिवेंट है। बट कोई स्टेट का कोई सेक्रेटरी नियुक्त हुआ या कोई मैनेजर नियुक्त हुआ या कोई ऐसा हुआ, तो वो आपको नहीं करना है, या कोई रेजिग्नेशन हुआ तो वो नहीं देखना है, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑल्सो विद अ नेशनल इंपॉर्टेंट। डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी has become really important topic nowadays, ठीक है। whatever be the news which is having a national international impact on defense, science and technology, जरूर पढ़िए। इसमें स्पेस साइंस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, याद रखिएगा, स्पेस साइंस, ठीक है। Environment, another very key thing, very key thing. कुछ भी related to environment is nowadays becoming very relevant, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। मतलब आप मान के चलिए मेरा बच्चा अभी KG1 में है, कैन यू इमेजिन उसको एनवायरमेंट स्टडीज का सब्जेक्ट है KG1 वाले को।
मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कोई सब्जेक्ट हो सकता है, वो भी KG1 और नर्सरी वाले बच्चे को। सो दिस इज सो इंपॉर्टेंट नाउ डेज। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट बिडेन को ये बात बोलनी पड़ी कि जो पेरिस की प्रोटोकॉल्स हैं उस पर हम पहले दिन ही साइन करेंगे। तो ये इतना रेलेवेंट न्यूज हो गया है। आप देखिए, एनवायरमेंट रिलेटेड ऑबिचुअरी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज जो बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस के लोग हैं, ठीक है, स्टेट विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो अगर कोई न्यूज ऐसी बन गई, जैसे मैंने आपको रिसेंटली बनारस वाला न्यूज बताया कि वो वहां पर एक मॉस्क्यू में एएसआई क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे करती है बेसिकली, तो उसको परमिशन मिला है कोर्ट की तरफ से कि भाई आप वहां पे डिग करके देख लो कि बेसिकली वहां पहले क्या था। तो देयर इज इट्स अ डिस्प्यूटेड साइट। लोग बोलते हैं कि वहां पर पहले मंदिर था, अभी वहां मॉस्क्यू है, और काफी ज्यादा, जैसे आपने अयोध्या में देखा। तो वो एक ऐसा न्यूज है जिसका इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल इंपैक्ट हो गया, ऑल्दो स्टेट का न्यूज है। अब कोई स्टेट में, जैसे आज नासिक में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सिलेंडर के कारण कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ, उसमें 20+ लोगों की डेथ हो गई। तो आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड बी वेरी, हम लोग काफी ज्यादा स्पेसिफिक रहे, इमोशनल नहीं होना चाहिए, बट दैट इज नॉट एन इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी आप देखेंगे ये रेगुलरली चल रहा है, तो ये न्यूज़ेस आपको पढ़ना ही नहीं है। अभी रेगुलर बेसिस में जो डेथ के बारे में आ रहा है, या ये क्राइसिस हो रहा, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कहीं रेमडेसिविर नहीं है, कहीं ये नहीं है, ये न्यूज़ेस एब्सोल्युटली आप ध्यान रखिए इनको। मतलब इनका इनका जो इंपैक्ट होता है ना, वो कुछ घंटों का होता है। हमें वो न्यूज़ेस पढ़नी है जिनका इंपैक्ट कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई बार तो कई सालों तक भी चलता है। कोरोना के बारे में पढ़ना एक बहुत क्रूशल है कि किस टाइप का वायरस है, क्योंकि अब इंपैक्ट सालों का है और अब तो ये सदियों तक चलेगा कोरोना। वो आपको इस टाइप से अपने आप को डिवाइड करना है न्यूज़ेस के लिए भाई, ठीक है। ये सारे चीजें एब्सोल्युटली अवॉइड करना है, बिल्कुल भी आप ध्यान रखिएगा। इंटरव्यूज में केवल और केवल ऐसे इंटरव्यूज जो बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल लोगों के रहे होंगे उनका, ठीक है। अदरवाइज इंटरव्यूज जनरली इज अ पर्सनल ओपिनियन, उससे अच्छा ओपिनियन सेक्शन होता है। तो इंटरव्यू जनरली आपको बहुत ज्यादा उस पर डीप में नहीं जाना है। बुक का रिव्यूज आता है, कल्चरल न्यूज होता है, माइनर स्पोर्टिंग इवेंट। ओपिनियंस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स, बट मे बी रेलिवेंट फॉर योर कम्युनिकेशन कमांड ओवर इंग्लिश, ठीक है। कंट्रोवर्सीज पे तो मैं आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करूंगा। कंट्रोवर्सीज मतलब इररेलेवेंट कंट्रोवर्सीज, लाइक अभी जो मैंने आपको बनारस वाली कंट्रोवर्सी बोली, वो रेलिवेंट क्यों हो गई? क्योंकि उसमें कोर्ट का, क्योंकि उसमें कोर्ट का, हाँ, सो कोर्ट का उसमें कुछ स्पेसिफिकली इंपैक्ट आ चुका है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि मेजर जो इस टाइप की न्यूज़ेस होती हैं वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं रह जाती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसी उल्टी सीधी कंट्रोवर्सी, मतलब एक पॉलिटिशियन दूसरे के खिलाफ कुछ बोल रहा है, बंगाल के इलेक्शन में जाके पता नहीं क्या क्या एक दूसरे को बोलते हैं ये लोग, तो ये बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सीडेंट इन अ माइनर नेचर। अब याद होगा आपको कि केरल में एक फ्लाइट, बिकॉज ऑफ जो टेबल टॉप एयरपोर्ट था उसके कारण एक फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ। तो वो एक्सीडेंट माइनर नहीं कहलाएगा, वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। बट रोज आप देखते हैं कि कहीं कोई बस खाड़ी में गिर गया, कहीं ये हो गया, तो ये वो नहीं है। हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ मतलब अभी नेशनल इंपॉर्टेंस का कोरोना रिलेटेड कुछ हेल्थ बजट है या हेल्थ वो है तो वो रिलेवेंट होगा, बाकी छोटे मोटे चीजों को नहीं पढ़ना है। मैट्रिमोनियल पढ़ने के लिए अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। और स्टेट का न्यूज पढ़ने के लिए भी आई थिंक, अब आप जानते हैं कि स्टेट का न्यूज बहुत ज्यादा रेलिवेंस में नहीं चलेगा। टॉपिक्स जो फोकस करना है हमको, वो आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्लियर किया कि एडिटोरियल पढ़िए। एडिटोरियल से आपका लैंग्वेज एंड नॉलेज टर्मिनोलॉजीज इंप्रूव होगा, काफी अच्छा इंप्रूव होगा। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, कोई इंग्लिश स्पोकन क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक है। और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो भी डोंट बी लाइक ओवर कॉन्फिडेंट दैट आई एम गुड इन इंग्लिश। ट्रस्ट मी, देयर आर टू एस्पेक्ट। वन, इन गुड इन इंग्लिश का मतलब होता है आप बोल पाते हो, बोल तो मैं भी रहा हूं,
ठीक है, मैं भी आपके सामने थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल ही लेता हूं, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट इज कमांड ओवर लैंग्वेज नाउ डेज, हाउ वेल यू कैन रीड एंड कॉम्प्रीहेंड स्टेटमेंट्स, दैट इज कमांड, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन, इज नॉट ओनली कमांड, वो दैट इज अ सेकेंड एस्पेक्ट। तो आपको वो एडिटोरियल से ही मिलेगा भाई, और अगर आप रीड नहीं करते हो ना तो आपका वो कॉन्सेंट्रेशन, वो कंसिस्टेंसी, वो पेशेंस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। आप एक पैराग्राफ पढ़ के देखना आरसी का, मतलब एक पैसेज पढ़ के देखना, 2 पैराग्राफ के बाद आप बोर होने लगे यदि, तो इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग बहुत पुअर है। आज ही करके देखना ये एक्सरसाइज, कोई भी आरसी उठाना, ठीक है, अपने पसंद का आरसी उठाना। चलो, अगर आप 2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद, 3 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है, मतलब आप रीड कर रहे हो। और अगर 2-3 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप बोर होने लगे और आपकी आंखें बंद होने लगी, आप करने लगे, तो फिर आप मान लेना कि भैया कितनी डिफिकल्टी है। ये आएगा भाई एडिटोरियल पढ़ के, लगातार 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 पढ़ोगे, आपका अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंस, आपकी कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी स्किल्स स्लोली स्लोली वर्क करेंगी। और बेटा एक बात याद रखो, ये कोई एलोपैथिक दवाई नहीं है कि मैंने एक गोली दिया, सर दुख रहा था अपना, अपन ने ये खाया, ठीक हो गया। ये एक कंसिस्टेंट है, ये आप समझिए, ये कंसिस्टेंट प्रोसेस है। आज भी अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मैं तैयारी करता हूं, मैं पढ़ता हूं, और मैं न्यूज़ करके फिर मैं आपको बताता हूं, देन ओनली इट इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल अदरवाइज? तो एडिटोरियल विल टेक यू दिस जर्नी वंडरफुली। खासकर जो लॉ वाले बच्चे हैं भाई, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, दिमाग में बैठा लो। इनफैक्ट लॉ क्या छोड़िए, आप मैनेजमेंट में आप देखिए, सब में वही है, बट लॉ वालों के लिए तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, इफ आपने लॉ एज अ करियर चूज किया है तो अपने दिमाग में ये बात को बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिए कि कंपलसरी मुझे रीड ही करना है जिंदगी भर, आज नहीं, जिंदगी भर, है ना। बाद में भी जब आप लॉयर बनेंगे तब भी आपको केसेस ही रीड करने हैं। तो लीगल एस्पेक्ट की जो न्यूज है, खासकर क्लैट वाले बच्चों के लिए, ये स्पेसिफिकली ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये न्यूज़ बहुत बहुत रेलिवेंट है। जैसे एक रिसेंट एग्जांपल देखते हैं, एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, ठीक है। पहला जो मैंने आपको एस्पेक्ट बताया था, अगर आप गौर करें इस बात को देख के, लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी, ये जो मैंने रिसेंटली आपको एक डिस्प्यूट बताया, अब ये कंट्रोवर्सी है, बट ये काम का कंट्रोवर्सी है। अगर आपने देखा होगा कि रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के करीब मेजर जो सिटीज है वहां पे जबरदस्ती लॉकडाउन लगा दिया, बट जुडिशरी ये बात भूल गया कि एट प्रेजेंट देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेचर का पावर सुप्रीम है। लेजिस्लेचर मतलब जो संसद है, जो कानून बनाते हैं पॉलिटिशियंस लोग जो हैं। तो ये जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा था तो जुडिशरी के पास पावर नहीं है कि वो इन्वॉल्वमेंट ले और वो लॉकडाउन करे, इसीलिए हाई कोर्ट का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और उन्होंने ये बात क्लियरली बोली कि भाई ये स्टेट के परविरेंस में आता है, ये किसके ऊपर आएगा, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है तो नेशनल, स्टेट और लोकल, ये 3 बॉडीज के पास पूरा का पूरा पावर है। नागपुर का अपना एग्जांपल लो, मुंडे साहब थे तो केसेस कम थे, जैसे ही मुंडे साहब को हटाया प्रॉब्लम चालू हुई, और जैसे ही पॉलिटिशियंस ने लिया फिर इधर उधर का मैस हुआ, आज हम उसको भुगत रहे हैं। So this is very unfortunate in terms of broadly you can say। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, बट अल्टीमेटली जो पावर है वो अभी पॉलिटिशियंस के ने, मतलब मैनेजमेंट एक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है। किसके पास पावर है? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दिया गया, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन ड्राइव करता है? लेजिस्लेचर्स ड्राइव करते हैं। तो जुडिशरी को इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला। सो कई बार ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट जबरदस्ती इस बात को संज्ञान ले लेता है, ये चीज वो भूल जाते हैं कि एट प्रेजेंट कुछ और चीजें चल रही हैं, ठीक है। इसी के जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट अभी आया था लास्ट ईयर के टाइम पे। हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद जो डॉटर्स हैं उनके पास सुप्रीम पावर्स आ गया, पहले ऐसा पावर्स नहीं था, बट हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद अभी डॉटर्स विल हैव इक्वल राइट्स इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर।
तो ये आपको पढ़ना है। एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब ये ऐसा लॉ था जो लगातार कर्नाटक में भी अप्लाई हुआ, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में अप्लाई हुआ और काफी बार अप्लाई हुआ। ऐसे बहुत सारी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आज के वर्डिक्ट में ये बात बोली कि भाई वी आर ओपन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जो रिटायर्ड जजेस है उनके लिए, क्योंकि काफी बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है रिटायरमेंट के ऊपर इसको लेकर। तो इस तरीके से ये लीगल न्यूज़ेस जो हैं वो बहुत क्रूशल हो जाती हैं आपके ऑन अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के पर्पस से। रिकरिंग इश्यूज को आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अभी फिलहाल कोविड अपन ने देखा, अब तो पूरा उसका पोस्टमार्टम कर लिया, कोविड का वैक्सीन भी आ गई। अब हमको आगे की चीजें पढ़ना है कि कोविड वैक्सीन किस तरीके से अप्लाई हो रही है, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो आपका रिकरिंग इश्यूज जो है उसको आपको पढ़ते हुए चलना है। अभी आपको पता है कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें से 4 स्टेट के इलेक्शन हो चुके हैं, 5वां जो है 8 फेजेस में हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और उसको लेके बहुत बड़ा फाइट चल रहा है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है कि भाई स्टेट में रैलीज की जा रही हैं जबकि पूरे देश भर में कोरोना चल रहा है। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बोला, लाइक दिस टाइप ऑफ न्यूज, दिस इज द एक्चुअली न्यूज़ बहुत ही ज्यादा रेलिवेंस होती है। सोशल मीडिया पे अभी रेगुलेशन के ऊपर फाइट चल रहा है। ये तो अभी कोरोना के वजह से ये रुक गई चीजें, नहीं तो जनवरी फरवरी में अगर आप देखेंगे जो हमारे लॉ मिनिस्टर है मिस्टर रविशंकर प्रसाद, ही वाज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट हाउ सोशल मीडिया इज मिसयूजिंग इट्स पावर, एंड दिस वी हैव सीन इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है, और भी कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। सो दे हैव मेड अ डेमोक्रेटिक अलायंस टू काउंटर two things. One, the power of social media, and other is the power of dictator countries. So democratic alliance is made to counter social media's lagatar interference. So this is, you need to read, you need to understand. Now these newses may not be very relevant in terms of current affair, but it is very crucial in terms of your understanding. और ये न्यूज़ेस पे मैं देखता हूँ आप लोग बहुत ज्यादा इग्नोरेंस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बट आपको आदत डालनी पड़ेगी ऐसी न्यूज़ेस को पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ोगे तो डिफिकल्ट होगा भाई, ठीक है। सो ये रिकरिंग वाली जो न्यूज़ेस हैं ये क्रूशल हो गई आपके लिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस न्यूज जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स एंड रिकॉर्ड, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट जो इलेक्टेड गवर्नर बने थे वो मिस्टर मुर्मू बने थे, ठीक है। तो ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ अ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट, नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी। तो द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नर ऑफ सॉरी नॉट गवर्नर, क्या बोलेंगे उसको बताइए। गवर्नर बोलते हैं कि गवर्नर मतलब फुल्ली स्टेट का जो गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी, हाँ। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आपके मुर्मू जी बने। तो आपको न्यूज आएगा, ये स्टैंडर्ड न्यूज हो गया, ये फिक्स है। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, तो आंसर इज मुर्मू जी, एमसी या उनका सरनेम नेम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो ये आपको ऐसे न्यूज़ेस, मतलब ऐसे जो करंट अफेयर्स हैं वो याद रखने पड़ते हैं। उसके बाद ही आप बहुत हद तक जब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज़ेस आएंगी तो यू विल बी एबल टू, इसके लिए नोट्स बनाना आपका जरूरी है। तो ये इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में अगर आप जाएंगे तो ये आपको ये मिलता चलेगा भाई। फाइनली मैं अपने फाइनल स्टेज पे हूं, ठीक है, फाइनल लेक्चर्स को कंप्लीट करने में। ये भी एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जो आपको समझना है कि आपको अवॉइड करते आना चाहिए न्यूज़ेस। यू मस्ट नो हाउ बेसिकली वी कैन इग्नोर फेक न्यूज़ेस, कैसे हम अपने जो अराउंड हमारे जो न्यूज़ेस हैं उसमें से पहचान पाए कि जो न्यूज़ेस हमारे लिए फेक है कौन सी रेलिवेंट है या कौन सी पार्शली फेक है या पार्शली रेलिवेंट है। तो ये एक बहुत ही क्रूशल एबिलिटी है, स्किल्स हैं, पर पैरेलली उसका एक साइंटिफिक तरीका भी है। मैं जनरली क्या करता हूं, जब भी मुझे कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है, फेसबुक पे फॉरवर्ड आता है, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉरवर्ड आता है, अगर वो मुझे डाउटफुल लगता है तो मैं उसको गूगल पे सर्च पे डाल के देख लेता हूं। गूगल पे सर्च पे आने के बाद अगर वो बहुत अच्छे पब्लिशर्स ने कवर किया है तो उसका मतलब वो न्यूज रेलिवेंट है, और अगर वो किसी और ने पब्लिश नहीं किया, उसके लिए 1-2 आर्टिकल्स ही आ रहे हैं, तो वो न्यूज प्योरली फेक है।
याद रखिए, इमोशनल नहीं होना है कोई भी न्यूज को लेके, तब तक जब तक आपके पास सर्टेनिटी ना हो कि वो न्यूज क्या है। अभी इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है कि लोग इतनी बुरी बुरी न्यूज़ेस फैला रहे हैं। अब कल प्रधानमंत्री जी एक अपना भाषण लेके आए, तो कई लोगों को अपना एक अपोजिशन पुट फॉरवर्ड करने के लिए, मतलब आप मान के चलिए लोगों में इतना ज्यादा नेगेटिविटी है और इस तरीके से बढ़ चुका है कि भाई कोई पर्सन अगर कुछ कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम, नहीं कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम। I'm not supporting a speech by Prime Minister, but I'm parallelly saying there is need to be understand that last year when the lockdown happened, that point of time we were not having any option. We were not having that infrastructure. Now we are facing this problem because of the incompetence of state governments in our country. Different state governments, specifically Maharashtra. ठीक है, we were unlucky that we got a chief minister who doesn't have an experience. तो ये अभी इसके खिलाफ आपको बहुत ज्यादा कुछ कुछ बनाया जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपोज करता हूं भाई किसी पर्टिकुलर पार्टी को और मैं किसी को फेवर करता हूं। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, यू नीड टू अंडरस्टैंड विद योर लॉजिक कि ये रेलेवेंट है, ये फेक है, ये आपको जबरदस्ती आपको इम्पोज किया जा रहा है, ये आपको समझना है और वहीं से आपको बचना है कि भाई ये एक प्रकार का आइडिया क्रिएट किया जा रहा है या थॉट प्रोसेस क्रिएट किया जा रहा है या मुझे गलत डायरेक्शन पे ले जाया जा रहा है। ये अगर आप कर सकते हैं, आपका लाइफ सुकून भरा होगा। नहीं तो आप मान के चलिए आपको दुनिया सबसे बुरी लगने वाली है। ट्रस्ट मी, जो मैं बोल रहा हूं ना, आप में से कई बहुत ज्यादा अभी यंग हो, आप मतलब एलिजिबल भी नहीं हो वैक्सीन के लिए अभी आप लोग कई, तो मैं ये बोलूंगा आपको कि भाई आप इस बात को बहुत स्मार्टली समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होगा, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए कि अंडरस्टैंड कर पाना कि न्यूज़ेस कैसी हैं क्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नाउ यू कैन ask me queries. We will have another 3-4 minutes to discussion. 5 minutes. I think I have taken around 5-10 minutes extra. That is, I think, acceptable. Hope you have understood what I have tried to communicate. Can somebody? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now you can ask me queries. Put forward me in chat box. Amruta's question is very, very relevant. How to make notes from the given news. So, as I told you, like for a simple example, let us take an example. Please be stay हाँ, आप जाइए मत, आप नुकसान करेंगे अपना अगर आप जाएंगे तो, क्योंकि मैं रेलिवेंट क्वेश्चंस को अब शेयर कर रहा हूं उसके आंसर्स। तो जब आप न्यूज के नोट्स बनाते हैं ना बेटा, तो जैसे मैंने बोला ना, वो फ्लो बनाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, क्वाड जो एक 4 कंट्रीज का बेसिकली क्या है, एसोसिएशन है। तो जब क्वाड के न्यूज के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट विद द फुल फॉर्म, देन द कंट्रीज, द पर्पस, व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन फॉर्म्ड, हाउ मेनी मीटिंग्स हैव बीन डन, ठीक है, एंड देन बुलेट पॉइंट्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट या जो भी कुछ उसका हो रहा है, और रिसेंटली जो उनके अभी तक इवेंट्स हुए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ब्रीफली राइट करना है, नोट्स करना है, और इसके लिए अनडाउटेबली आपको सहारा लेना पड़ेगा न्यूज़पेपर्स का या डिफरेंट चैनल्स का, गूगल्स के थ्रू या कहीं और से आप उसमें रेलिवेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो न्यूज बनाने का रेलिवेंट न्यूज जो अपने पास है उसको आप, मैं वही बोल रहा हूं कि आप हर न्यूज को इनिशियली नहीं सेग्रीगेट कर पाएंगे, हर न्यूज का नोट्स नहीं बना पाएंगे, अदरवाइज आप 6 घंटे पढ़ते रहोगे तो भी कम होगा। दिन का 5-6 न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट आप कम से कम कंसीडर कीजिए। उसके लिए गूगल पे आप उस न्यूज के बारे में डालिए, आप आज ही जाइएगा, क्वाड डालिएगा, क्वाड QUAD, क्वाड डालिए। क्वाड डालने के बाद आपको उसके बारे में काफी सीधे आएंगी। विकिपीडिया में कई बार चीजें इररेलेवेंट होती हैं या फॉल्स भी होती हैं, बट आप तो भी कुछ अच्छे सोर्सेस के थ्रू आप उन न्यूज़ेस के बारे में पढ़ो, 4-5 अलग अलग जगह पढ़ो, जो जो रेलिवेंट लगता है उसके बारे में आप नोट कर लो। दिस इज द वे वी हैव कवर्ड अ न्यूज। एक न्यूज हमने कवर कर लिया क्वाड के बारे में, ठीक है। ऐसे ही और बाकी न्यूज़ेस को आपको धीरे धीरे बनाना। बेटा ये एक प्रकार का ना आर्ट है,
ये कोई साइंस नहीं है कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। न्यूज को राइट करना, न्यूज को रेलिवेंस निकालना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लर्न करोगे। इट विल टेक टाइम, बिट टाइम, नॉट वेरी मच। मेरे ख्याल से अगर आप कंसिस्टेंट करोगे तो कुछ 15 दिन या 1 महीने के अंदर में आप एकदम ट्रैक पे आ जाओगे। बट दो ध्यान रखिएगा, वो 3 स्टेप फॉलो करना है। आई एम रिपीटिंग, आइडेंटिफाई न्यूज, सेकेंड इज dig that news, and third is most important, prepare the notes। ठीक है। आर्या का है, सर व्हाट कैन वी डू फॉर डेटा एंड नंबर्स, डू वी नीड टू इंक्लूड देम इन आवर नोट्स? नो बेटा, देखो बहुत ज्यादा रेलिवेंट इररेलिवेंट मतलब बहुत ज्यादा फैक्ट्स और नंबर्स पे फोकस मत करिए, आप याद नहीं रख पाओगे। तो आपको उसका कॉम्प्रीहेंशन पे आर्या वो करना है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। कॉम्प्रीहेंड करोगे तो लॉजिकली आप कनेक्ट कर पाओगे न्यूज़ को, ध्यान रखना। अब जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, अब आपको यकीन नहीं होगा कि जितने अलग अलग डेटा सोर्सेस पे जाओगे तो पहले क्वार्टर में हर किसी ने अलग अलग अपना नंबर बताया। शुरुआत में वो 23.9% था, कभी 23% था, कोई 24% बोलता। तो किधर तक आप डेटा याद रखोगे? नहीं, उतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको आप थोड़ा इग्नोर करिए। सनाया का क्वेश्चन है, इस क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड न्यूज इज रेलिवेंट? एब्सोल्युटली, फॉर अ क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी मच रिलेटेड। व्हाई? लेट मी टेल यू, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया पे ये लगातार क्रिप्टो करेंसी को लेके प्रेशर बनाया जा रहा है कि वी शुड, अभी हमारे यहाँ बैन, पार्शली बैन है। अगर आपको पता होगा, जिनको क्रिप्टो करेंसी नहीं पता है भाई, अभी आप बिल्कुल चुपचाप बैठिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे के सिचुएशन में, आगे के लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज क्रिप्टो करेंसीज। बट फिलहाल जिसको पता है उसको ये बात पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है, उसका ट्रांजेक्शन बैन है। लाइक टेस्ला के मिस्टर एलॉन मस्क ने क्या बोला था? एलॉन मस्क ने बोला कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी से बाय कर सकते हैं कार, तो वो यूएस के लिए अप्लाई हो रहा है, इंडिया में अभी आप ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हो। तो क्रिप्टो करेंसी इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। फ्यूचर में उसका काफी बड़ा इंपैक्ट है। वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स विद डॉलर, तो करेंसी का एक इशू है, तो ऑल्टरनेटिव करेंसी हमारे सामने होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको पढ़ा होना ही चाहिए बेटा सनाया, बहुत जरूरी है ये। इट विल कम अंडर इकोनॉमिक, ठीक है। सीटी एग्जाम, यार ये निधि, ये क्वेश्चन बेटा ये मेरे से मत पूछो। अब एग्जाम कब होगी? मैं कोई उद्धव ठाकरे या कोई मैं एजुकेशन मिनिस्टर तो हूं नहीं यार अपने महाराष्ट्र का कि मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम कब होगा। ना बेटा, वो भी नहीं बता पाएंगे, ठाकरे जी भी नहीं बता पाएंगे, कहां से बता पाएंगे? सोचिए आप, हमको नहीं पता ना कि कब सिचुएशन बदलने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम कब होगी ये मैं नहीं जानता, है ना। आपको कम से कम 1 महीने पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और क्वेरीज पूछिए, चलिए। Anyone have any queries? All queries cleared? So you are all charged up for making your life wonderful by reading relevant newses, important newses, making your communication and your command over English better as compared to what today is, and most importantly, preparing your exam with the full confidence rather than just passing out things that कि सर इतना सारा है और ये है वो चीजों को लेके। So are you ready right now? Yes or no? चलिए चैट बॉक्स में मुझे यस और नो तो भेज सकते हैं, मैंने आपके लिए 1 आवर का एफर्ट भेजा है, तो आपसे मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि एवरीबडी शुड आंसर मी। कम ऑन। आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस एवरी सिंगल टाइम। मैं, यस सनाया, वी ऑल आर रेडी टू फाइट, वी ऑल नीड टू, मतलब अपने आप से फाइट करके हमको बढ़ना है आगे। आई एम श्योर एवरीवन इन दिस सेशन, जो अभी तक हैं और जो पहले भी थे, वो सभी की सभी अवेलेबल, मतलब इतने फाइटर्स हैं कि यू कैन परफॉर्म रियली वेल। बस थोड़ा अपने अंदर एक पेशेंस लाइए, कंसंट्रेशन लाइए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू लाइक डिलीवर रियली रियली गुड गाइस, ठीक है। तो दैट्स इट। आई थिंक मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपके लिए।
आपका हमारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा नंबर उनके पास होता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं न्यूज़ेस के बारे में कि सर ये न्यूज़ मुझे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और इनफैक्ट आप मुझे न्यूज़ भेज सकते हैं कि सर प्लीज डिस्कस दीज न्यूज़ेस, तो आने वाले समय पे हम न्यूज़ेस इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसमें अब हम लोग और भी एड ऑन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे वर्कआउट कर रहे हैं, और आपके सजेशन जितने भी पॉसिबल हैं हम लोग कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने का। थोड़ा टफ टाइम हम सभी के लिए चालू है, वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी बैड फेज, बट आई एम श्योर हम मिलकर अच्छे से लर्न करके, अच्छे से समझ के ये टफ टाइम को भी अकेले धकेल देने वाले हैं, और अपन अच्छे टाइम पे आ जाएंगे, अच्छे से एग्जाम्स देंगे और अच्छा अपन कर पाएंगे भाई, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।